Next, number 6. Find the value of k if sine inverse k times tan in bracket 2 cos inverse root 3 by 2. Find k if sine inverse k times tan 2 cos inverse root 3 by 2 is equals to pi by 3. एक इक्वेशन हमें दिया है, सॉल्व करने के लिए हमें k का वैल्यू बताना है. Leave little bit more gap. 7-8 lines. Number 7. Question है evaluate sine in bracket pi by 3 minus sine inverse minus half. That's the question. इन दो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहला वाला seems to be easy. तुम ट्राई करो पहले. Take 2 minutes. Try the first one. So in this question, the first thing we can do is we can shift this sine inverse to the right side. Like this inverse के कंटे से हम फंस जाएंगे, मतलब बच जाएंगे. What is left? K is there. Tan in bracket 2 cos inverse root 3 by 2 cos के कौन सा टेबल में आता है? पाई बाई 6 पे आता है. और हमने साइन इनवर्स को वहां भेज दिया, तो इट बिकम्स साइन पाई बाई. ये स्टेप समझ में आया? तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड एट द वेरी फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इस साइन इनवर्स वाले फंक्शन को राइट में भेज दिया, तो इट बिकम्स साइन पाई बाई. नाउ कैरिंग दिस फॉरवर्ड, we see k is there with a tan 2, cos inverse and cos gone, so 2 into pi by 6 will be what? Pi by 3. Once again same fashion, pi by 3. और यहां से साइन पाई बाई 3 सोचो, साइन 60. आंसर इज रूट 3 by 2. Now k times this is tan 60. Tan 60 is what? Root 3, and this is on the right side root 3 by 2. Root 3 and root 3 gone. We have k value as half. This is our answer. ये सारे PYQs ले गए हम लोग 2 marks वाले. Question number 7. Do it. Try करो पहले. कितना? 1. So
This is sine bracket में pi by 3 minus. Now if we apply formula to this, ये क्या देने वाला है? It's going to give us minus of sine inverse half, right? जो कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा साइन पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ इज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6. इन द नेक्स्ट स्टेप साइन बाहर पाई बाई 3 एंड दिस इज पाई बाई 6. इनको ऐड करने पे वी आर गेटिंग पाई बाई 2. साइन पाई बाई 2 इज साइन 90 विच इज 1. फिनिश्ड. 6 and 7 डन. अब थोड़ा क्वेश्चन का मॉडल हम चेंज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल दिखेंगे. मे बी द सोल्यूशन इज नॉट क्रिटिकल बट द क्वेश्चन लुक्स क्रिटिकल. बोला है इवेल्युएट tan 1 by 2 times sin inverse 2x by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. Conditions है mod x is less than 1, y is greater than 0 and xy is less than 1. Put a single start with this question. As you can see, it looks little complicated, but it is not. Leave half page gap. Leave half page gap. Question number 9. Prove that sin inverse 2x root over of 1 minus x square is equals to 2 sin inverse x such that x belongs to closed interval minus 1 by root 2 say plus 1 by root 2. Single star. Question 10, similar half page gap. Prove 2 times sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 24 by 7. चलिए इतने क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं. विल कम टू क्वेश्चन नंबर 8 गाइस. ध्यान से समझेंगे. यहाँ पे सारी बातें फॉर्मूलेस की है. आप फॉर्मूले लिस्ट पे आइए. कम टू द एकदम एंड वाले सेक्शन पे आ जाओ. Try to access your formula sheet and see whether you have this formula somewhere. ये फॉर्मूला है. If I'm not wrong, ये 2 tan inverse x का फॉर्मूला है. 2 tan inverse x is equal to sin inverse 2x by 1 plus x square. और वही फॉर्मूला cos inverse में क्या है? 1 minus x square upon 1 plus x square. दोनों ही 2 tan inverse x का फॉर्मूला है. समझो जस्टिफाइड गाइस. ये फॉर्मूला लिस्ट अपने आप में एक्सेस करो. यू विल गेट टू सी. सो हमें जो कंडीशन दिया है उधर से हम आगे चले. पे अटेंशन. tan हाफ सस्टेन्स. ये जो मैंने क्लाउड बनाया है रेड sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 2 times tan इनवर्स x. और क्योंकि ये वाला पार्ट y के रेस्पेक्ट में है तो उसका आंसर क्या होगा? 2 times tan इनवर्स y. और बाजू में ये फॉर्मूला हम मेंशन करते हैं. इन द नेक्स्ट स्टेप लेट द tan एंड हाफ परसिस्ट. हम इन ब्रैकेट में से 2 को बाहर निकाल देते हैं कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या बचा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. This 2 and 2 gone. Now we have to pay attention to this part of the question
that is tan inverse x plus tan inverse y with this given conditions. हमने फॉर्मूला लिखा था. For such conditions, tan inverse x plus tan inverse y का वैल्यू क्या बन जाता है? It changes to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. ये बात इस ग्रीन वाले सर्कल की है और बाहर हमारे पास कौन था? Tan. Is it clear? Now in the next step, tan and tan inverse ready to get cancelled. We are left with x plus y by 1 minus xy. And that is our answer. इस क्वेश्चन में इस कंडीशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगेगा, हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक पाई के रिस्पेक्ट में भी था, वो कब होता है उसके लिए कंडीशन अलग थी. समझ गए? इसीलिए उन कंडीशंस पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है. इस कंडीशन से अकॉर्डिंगली द फॉर्मूला वाज दिस एंड वी गॉट दिस आंसर. नेक्स्ट पे आता है नंबर 9. इसको भी हमने एक सिंगल स्टार दे रखा है. वेरी गुड क्वेश्चन. प्रूव दैट साइन इनवर्स दिस थिंग इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x. अब तुम बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है. मान लेते हैं ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले को ही हमें प्रूफ करने के लिए दिया है. ऐसे क्वेश्चंस में हम किस मेथड का सहारा लेते हैं? दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. जो बात मैं बता रहा हूं दिस मेक्स इट क्वेश्चन डबल स्टार क्योंकि ये मेथड हमें डिफरेंशिएशन में मिलेगा. जब हम डेरिवेटिव चैप्टर करेंगे क्लास 12 का, देयर विल बी अ टॉपिक कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशनल डेरिवेटिव या डेरिवेटिव यूजिंग आईटीएफ फंक्शंस. उनका सब्स्टिट्यूशन करना आपको देखते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि मेरे को क्या सब्स्टिट्यूट करना है. उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे. पे अटेंशन. ऐसे क्वेश्चंस में क्योंकि ये क्वेश्चन प्रूफ का है, वी ऑलवेज स्टार्ट विद द एलएचएस. हमने एलएचएस फंक्शन को लिया विच इज साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. Our whole focus will be in this part of the function, which is root over of 1 minus x square. हमें सब्स्टिट्यूट एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना है. ध्यान से समझेंगे. मेरे पास सब्स्टिट्यूट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है. मेरे पास साइन थीटा अवेलेबल है, कॉस थीटा अवेलेबल है, टैन थीटा अवेलेबल है. और जब ये मेन प्राइमरी रेशियोज अवेलेबल है तो उनके तो सेकेंडरी वर्जन अवेलेबल है ही रेसिप्रोकल. हम इन तीन के बारे में डिस्कशन करते हैं. अगर मैं टैन को सब्स्टिट्यूट करने जाऊं तो यहाँ पे सिचुएशन क्या बन जाएगा? 1 माइनस टैन स्क्वायर. हमने आइडेंटिटीज में 1 माइनस टैन स्क्वायर कहीं देखा है? नहीं देखा. दैट मींस टैन सब्स्टिट्यूट तो कतई नहीं होगा. और अगर टैन ही सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो कॉस भी कभी नहीं. थिंक ऑफ कॉस. अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इट विल गिव मी साइन स्क्वायर थीटा. उसको स्क्वायर रूट करना है, इट विल गिव मी साइन थीटा. अच्छी बात है. तो यहाँ पे कौन हुआ? यहाँ पे भी एक्स की जगह पे कॉस थीटा ही पुट किया ना हमने. तो क्या ही हुआ सोचो? 2 कॉस थीटा साइन थीटा. और ये क्या बन गया? साइन 2 थीटा. इसके बाहर कौन है? साइन इनवर्स. ये साइन और साइन इनवर्स कैंसिल होने वाले हैं. बचा क्या? 2 थीटा. लेकिन हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था? x इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो व्हाट इज थीटा वैल्यू? कॉस इनवर्स x. लेकिन उन्होंने आंसर क्या मांगा है? साइन इनवर्स x. दैट मींस हम लास्ट स्टेप में जाकर के अटक जाएंगे. जस्टिफाइड है. इन बातों को जब हमने समझ लिया, ये सारी ट्रायल नहीं करनी है क्योंकि हम समझ रहे हैं अभी. तो मैंने बताया है कि इस तरीके से हम समझते हैं व्हाट वी हैव टू डू. दैट मींस इट क्लियरली इंप्लाइज कि हमने राइट साइड देख लिया और देख करके हमें समझ में आया कि व्हाट डू वी सब्स्टिट्यूट. वी विल पुटिंग x इज इक्वल टू साइन थीटा. अगर ऐसा करेंगे तो हमारा एलएचएस क्या बन जाएगा? स्टेप्स दिखाने होंगे. साइन इनवर्स 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which in the next step becomes sine inverse 2 times sine theta and cos theta. That is sine inverse, in bracket we have sine 2 theta. Sine inverse sine gone, we have 2 theta left. So it is 2 into. हम इस स्टेप में जाते हैं जहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, वहां से हम थीटा का वैल्यू मांगते हैं. सो व्हाट विल बी थीटा? इट विल बी साइन इनवर्स x. वी सप्लाई है थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x. Hence, our final answer is 2 sine inverse x, and that is the required RHS proved. यही अगर क्वेश्चन के राइट साइड में cos इनवर्स होता तो हम cos थीटा assume कर लेते.
हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक लिखा, राइट? इस क्वेश्चन नंबर 10 में हाफ पेज गैप के बाद यू राइट वन क्वेश्चन नंबर 11 विच यू विल ट्राई एट होम। वो है प्रूव दैट साइन इनवर्स 2x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 cos इनवर्स x। दिस इज यू विल ट्राई एट होम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है। व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कितना सा छोटा सा क्वेश्चन हमारे अभी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड दैट भी इन द कंसेप्चुअल क्लास। 2 साइन इनवर्स 3/5 को हमें प्रूव करना है tan इनवर्स। यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या है, साइन इनवर्स का आईटीएफ इज गोइंग टू tan इनवर्स, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर खाली साइन इनवर्स होता तो प्रॉब्लम नहीं था, हमने वो मेथड सीखा था पाइथागोरस थ्योरम वाला, राइट एंगल ट्रायंगल बना के कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 2 साइन इनवर्स है। सो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, इस वाले क्वेश्चन को अगर एज अ फॉर्मूला हम ट्रीट कर ले, अब इस वाले पार्ट को अगर एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर ले, तो व्हाट विल हैपन? थिंक, कैन आई राइट वी नो 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x टाइम्स रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्टिफाइड है। यहां पे x की जगह पे क्या दिया उन्होंने? 3/5। सो अगर हम पुट कर दे, सो हमारा जो सिचुएशन है, 2 साइन इनवर्स 3/5 which happens to be our LHS, it will become what? Tell me. Sine inverse 2 into 3/5 into root over of 1 minus 3 का square is 9, pi का square is 25, which in the next step becomes sine inverse this 2 into 3 becomes 6 now, 6/5। और यहाँ पे सोचेंगे तो it will give us what? 16/25 under root, which is what? 4/5। So I basically got sine inverse 24/25। अभी भी प्रूफ आया नहीं है, लेकिन अब आसान है हमारे लिए, क्योंकि अब जो रेशियो आ गया, आईटीएफ आ गया, वो ओरिजिनल साइन इनवर्स है, ओनली साइन इनवर्स। नाउ व्हाट वी कैन ट्राई दैट मेथड जो हमने सीखा है, दैट इज वी मेक अ रफ राइट एंगल ट्राइंगल एंड सी 24 किसका वैल्यू है? परपेंडिकुलर का। 25 हाइपोटेन्यूज का। यहां पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो इट विल गिव अस व्हाट? 7। 7 ही आएगा ऑफकोर्स, राइट साइड में भी दिख रहा है। तो इसको अगर हम tan इनवर्स में चेंज करें, व्हाट विल हैपन? थिंक, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स perpendicular, that is 24 by base, and that is our RHS. Complete. ऐसे सिचुएशंस में ये फॉर्मूला लिखना इंपॉर्टेंट है गाइस। Payment of 1,600 rupees is successful. चीख चीख के बता दे सबको, ऑनलाइन में भी चला था, रिकॉर्ड भी हो गया। नेक्स्ट चले। 11th I said it will be task. Question number 12.
prove that sine inverse 8 upon 17 plus sine inverse 3 upon 5 is equals to tan inverse 77 upon 36 is equals to sine inverse 77 upon 85. हमें दो RHS दिए हैं. We recall that property now. Sine inverse x plus sine inverse y का फॉर्मूला याद है हमें guys? It will give us sine inverse x root over of 1 minus y square plus y root over of 1 minus x square. इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे ऑन दी LHS, क्योंकि दोनों फंक्शन किसमें है? साइन इनवर्स में है. सिंपल आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y. इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे, सॉल्व करोगे तो देखोगे तुम्हारा आंसर किसमें आने वाला है? साइन इनवर्स में ही आने वाला है. तो तुम्हारा जो RHS 2 है वो सबसे पहले आ जाएगा. जस्टिफाइड. और RHS 2 को RHS 1 में ले जाना आता है हमें. tan इनवर्स यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल. कंप्लीट करो बाय योरसेल्फ. कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैंने बता दिया. ट्राई.
हो गया क्या? मैच किया होगा. सो आई एम नॉट सॉल्विंग दिस. So we have sine inverse x value 8 by 17 root over of 1 minus 9 by 25 y square plus y times root over of 1 minus 64 by 289. That is sine inverse 8 by 17 and this will give us 4 by 5, right? And this is 3 by 5. 289 से 64 क्या? 15. 15 by 17. Correct? Which in the next step? 32 by 85 and 45 by 85. That is sine inverse 77 by 85. क्या बोल रही थी बंदन बोलो? So we have proved the RHS 1. Sorry, RHS 2 is proved. अब इसको ये अगर ट्राइंगल से कंप्लीट करेंगे, I'm not showing that step anymore. We'll get tan inverse 77 by 36. RHS 1. और याद रहे कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर रहे हैं, सिंस वी आर यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल. ये बातें यहाँ पे शो करोगे उसी के मार्क्स मिल जाएंगे. So in this question we understood the given LHS was both sine inverse. तो फॉर्मूला तो sin inverse x plus sin inverse y के लगेगा. सिचुएशन कुछ और हो सकता था. सिचुएशन ऐसा हो सकता था कि एक ITF हमें cos इनवर्स में दिया है और एक sin इनवर्स में दिया है. हमने जितने फॉर्मूले उस दिन देखे थे ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं था कि जहां पे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला देखा था हमने. वी सॉ इधर बोथ sin इनवर्स और बोथ cos इनवर्स. प्लस है माइनस है वो सब अलाउड है. तो ऐसे सिचुएशन पे जैसे मैंने एक सिचुएशन दिया, लेट अस टेक दिस 13th क्वेश्चन. आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13. हमें बोला है प्रूफ cos इनवर्स 12 by 13 प्लस sin inverse 3 by 5 is equals to sin inverse 56 by 65. सोचो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे. लेफ्ट साइड में जो फंक्शंस हैं वो एक साइन इनवर्स एक कॉस इनवर्स. भाई तो मैं साइन को कॉस इनवर्स में ले जाता. उसको देखना है. हमें राइट में जो फंक्शन चाहिए वो साइन इनवर्स में चाहिए. दैट मींस वी वांट टू जनरेट अ साइन इनवर्स आंसर. कल हम कुछ भी कर सकते हैं. अब शॉर्टेस्ट पाथ अगर खोजोगे तो शॉर्टेस्ट पाथ यही है कि हम पहले वाले फंक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं साइन इनवर्स फंक्शन में यूजिंग आवर ट्राइंगल लॉ. और फिर हमारे पास यहाँ पे एक साइन इनवर्स समथिंग दैट इज साइन इनवर्स एक्स. ऑलरेडी साइन इनवर्स वाई हमारे पास है 3/5. अप्लाई द फॉर्मूला. वॉट एवर आंसर यू गेट इन साइन इनवर्स. करो सॉल्व इट नाउ.
First inverse, this is 12 is the base, 13 at the hypotenuse, 5. This will give us 5. So if I change to sine inverse, it becomes sine inverse. I have taken the LHS now. 5 by 13. And then I also have sine inverse 3 by 5. इनमें वही फॉर्मूला अप्लाई करें, sin inverse x plus sin inverse y, that is x times root over of 1 minus y square plus y times root over of 1 minus x square. This will give us sin inverse 5 by 13 into 4 by 5 plus 3 by 5 into 12 by 13. In the next step, this is sine inverse 20 by 65 plus 36 by 65. And we got the answer in no time, that is 56 by 65, our required RHS. Understood, guys? ये हो गया प्रूफ हमारा.